Okay, we are recording this session. I will share the result that you sent to me of that person so we can have a detailed discussion about it. Just give me a second. Okay. Meanwhile, you have question you can ask. ओके लेट मी मैं उनको ना ज्वाइन करवा रहा हूँ साथ हाँ, उनको तो प्लीज जल्दी से करवा दो। जी जी बस तो अच्छा इसमें है कि मैंने देखा है मैं स्टेटस देखा था उसमें आप उसका प्रोसेस भी करते हैं इमिग्रेशन का भी। हाँ जी, मैंने कोशिश किया है, ट्राई किया है, स्टार्ट किया है। अच्छा अच्छा अभी स्टार्ट की है। Obviously, because I myself did the PTE exam in December 2023. So it's not a long time ago. So until and ओके I was confident, I cannot guide anyone as such. So अच्छा जी ठीक है। आपने रिजल्ट देखा आपने आंसर्स देखे हमारे। the screen, it's visible on the screen. And जी so if let him join so we can go through it one by one now. ओके ओके ही इज Meanwhile, ज्वाइनिंग। can you give me 2 minutes? I can have a glass of water because before that I was having a session. ओके ओके So प्लीज टेक। meanwhile, we will wait for him to join and then we'll start. Just give me 2 seconds. ओके 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 नो प्रॉब्लम। Did he join? जस्ट 1 मिनट उनका 90% हो गया। जूम ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो बस। जिसे पहले करके रखनी थी ना। मुझे आइडिया नहीं था कि जूम पे करना है। मुझे ये था शायद व्हाट्सएप पे होगा ग्रुप कॉल नहीं तो तो फिर स्क्रीन नहीं शेयर हो पाती ना। बस अभी हो गया। अच्छा इसमें जो है ना इनका जो है रीड अलाउड इसमें आ रहे हैं एवरेज। एवरेज इनकी बन रही है ऑलमोस्ट 60। उसकी 90 में से 65 62 61 फाइव फाइव से सिक्स फाइव तक ये पांच में ले जाते हैं 65 60 to 65 और एक आधे में इनका 50 पे ड्रॉप होके आ जाता है जो भी ये मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें प्रॉब्लम है। Your house rarely rates high on the list of a fun and exciting home remodeling projects. Okay, so issue with him, जो मैं बार सबको you get number one is that he is using either a laptop. There the voice echoes. Because of that, the AI of the app unit is not able to understand what is he saying. Because of that, if you can see, there are so many red words, right? So because of that, he is बिल्कुल not able to score. Otherwise, and secondly, his pronunciations are not good because obviously because of these red words, the AI is not able to understand what is he saying. So they are deducting his marks based on it. Can you hear me? yes yes I am hearing you okay there And are two secondly, problems to highlight. fluency. Let's see what is issue. But when your home dwells a leaf, your attitude might take a sharp turn. Suddenly, the prospect of a dry, tightly sealed house begins to look very attractive.
and maybe he's not taking natural poses. See, if you look at the last line, can also improve the, then he took a pose, then curve, then he took a pose. And I don't think so in the paragraph there would be two poses or commas in the same line just after one word. So maybe he ran out of breath over there and he like broke his voice. So that's why he lost marks on fluency. Mostly he ran out of breath. I Because noticed in that is different. he is not stopping at the right places. जहाँ commas और full stop दिए हुए वो वहां पे रुक नहीं रहा. Like after, जी जी। like see for example, if you look at this, after project there is a pause, but if you look at here, if you look at here, after project, can you see the slash? The slash is for the pause. Can you see the slash? Yes. Is there? No, no, No. Good. no. Exactly. Now, if you look at, there is another breakdown after leak, right? So Yes. he should take a natural pose. एक कोमा में जैसे कयाम करते हैं ना, एक कोमा की कितनी देर लगती है, जैसे एक नॉक आप करते हो, टक टक करते हो, तो एक टक जी जितनी जी। कोमा पे पोज होनी चाहिए. नाउ लेट्स सी इफ ही हैज स्टॉप्ड आफ्टर लीक. He hasn't. Roofing your house really rates high on the list of a fun and exciting home remodel. See, after leak he hasn't stopped. तो जब आप सांस ही नहीं लोगे तो एक वक्त पे आपका दम घुटेगा. जी। तो वो क्यों बिल्कुल। दिए हुए हैं? वो कॉमर्स इसलिए दिए हुए हैं कि आप ये रीडिंग में भी काउंट होती है बात कि आपको इतनी सेंस है कि कहाँ रुकना चाहिए कहाँ नहीं रुकना चाहिए. ये चीजें प्रेप वन में ओके। कर दी होती है. सो दिस इज हिज वेरी main mistake that he is not able to score. So if you look at it, pronunciation, why? Because obviously he's running out of breath, so he's not taking natural pauses, so that's why मतलब वो लफ्ज खा रहा है क्योंकि उसको किसी तरह बात कंप्लीट करनी है. पता नहीं लोग क्यों समझते हैं तो फ्लुएंसी का मतलब ये है कि बोलते जाना है, नेचुरल पोज नहीं लेना. So obviously he is not taking natural poses. He is running out of breath. He is not able to pronounce the whole word because he wants to complete the sentence as soon as possible. Because of that, he is having a fluency issue, and because of that, he is stressing at wrong words. Also, if you look at here, red, your is red, can is red, your is red. Because हम वो उसको ना हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है कि हम ये समझते हैं कि इसको रीड अलाउड का मतलब है किसी पे मतलब वो करना, जैसे योर एटीट्यूड माइट बी, तो वो उसको जैसे गुस्से में कह रहे हैं. नहीं, योर एटीट्यूड माइट टेक अ शार्प टर्न. अब वो इस तरह पढ़ा, योर एटीट्यूड माइट टेक अ शार्प टर्न, ऐसे नहीं है. तो उसको पोज लेना चाहिए लीक के बाद, वो पोज नहीं ले रहा है, उल्टा जो है वो डांट रहा है, मतलब सॉरी स्ट्रेस ले रहा है. तो वो तीन चार गलतियां तो वो यही मतलब दिस इज द बेसिक थिंग about speaking in English, that you talk very politely, fluently, read the complete word, read properly with proper pronunciation, take natural pauses because there is you're talking to another person. ठीक है, तो उसको आप नेचुरली पढ़े. अब मैं इसको कैसे पढ़ूं? Roofing your house Excuse, really rates high on the list of fun and exciting home remodeling projects. But when your home develop a leak, your attitude might take a sharp turn. Suddenly, the prospect of dry, tightly sealed house begins to look very attractive. A beautiful new roof can also improve the curve appeal for your house. नेचुरली बोला ना, मैं किसी को डांट रही हूँ, मैंने कॉमर्स, हालांकि मैंने इसको प्रैक्टिस नहीं की तो मेरा दम घुटना चाहिए था, पर नहीं घुटा क्योंकि मैंने नेचुरल पोज लेके वैसे ही उसको कवर अप कर दिया. ठीक है, ना ही मैं डांट रही हूँ कि योर एटीट्यूड माइट बी. तो इसकी वजह से इसकी ये गलती है. अगर ये इम्प्रूव करेगा तो इसको स्कोर चला जाएगा. सेकेंडली आज एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी मैम। जी बताएं. यहाँ पे यू आर जो है ना जो बेसिकली प्रॉब्लम आता है ना, वो ये आता है कि फ्लुएंसी को मेंटेन करने के लिए इसे स्पीड से बोलना पड़ता है। किसने कहा ये बात? ये बताएं. वैसे मैं खुद से कह रहा हूँ, मुझे किसी तो ने कहा नहीं है। गलत है ना. मैंने किसी से लर्निंग क्लासेस नहीं ली। तो ये गलत आपका पर्सपेक्टिव है. देखिए ये तो क्लास आप जब भी, ये तो बहुत शुरू में जब हम स्कूल टाइम में थे तब भी बताया जाता था कि इवन कुरान जब हम पढ़ते हैं तो भी वहां पे पोजेस होती है, नेचुरल पोजेस. ठीक है, वो इसलिए कहते हैं कि अगर आप नेचुरल पोज नहीं लोगे तो आपका दम घुटेगा, आप गलत जगह पे पोज अटकोगे, तो जब आप गलत लफ्ज जगह पे रुकते हो तो लफ्ज का मीनिंग चेंज हो जाता है और आपको गुनाह मिलता है. राइट. मुझे ऐसा इधर ऐसा ही है. ठीक है, तो कॉमर्स ही ऐसा ही है। नेचुरल पोजेस है. नहीं, अगर कोमा है तो उस पे कितना को हमें लेना पड़ेगा पाज, और अगर फुल स्टॉप है तो कितना हमें रुकना चाहिए? जैसे आप किसी को खटखटाते हो ना,
तो एक खटखटाने में जितने टाइम आप लगाते हो वो कॉमा के लिए है, और तीन खटखट करने में आप जितनी देर लगाते हो वो फुल स्टॉप के लिए। ठीक, ठीक हो गया, ठीक। अच्छा जी, ये रीड अलाउड हो गया, इसमें आपकी ये जब मैं मिस्टेक्स जब नहीं। मैं इसे स्लो बोलता हूँ ना, बिल्कुल नॉर्मल रेंज में बोलता हूँ, तो फिर मेरा स्कोर गिर जाता है। मैंने प्रैक्टिस जब करता हूँ ऐप मॉक टेस्ट यूनि के पे, अलावा। यही ऐप यूनि का मसला है, मैंने भी ऐप यूनि पे किया था। तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आई थी। असल में ऐप यूनि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, उसका एआई जो है ना इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है। तो वहां पे ये उलट है, मगर जब मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली, तो मुझे मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे ना, जब मैं क्योंकि नॉर्मली पढ़ी थी जिस तरह मैंने किंडरगार्टन में, केजी नर्सरी में पढ़ाई, क्योंकि आपने इतनी रीडिंग करनी है। तो मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो फिर अगर जब मैं पास, तो मैंने किसी से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा नहीं, ये एप्लीकेशन थर्ड पार्टी है, रियल पर्सन में ऐसा नहीं होता, रियल पर्सन में आप नॉर्मल बोलो। ठीक है। तो मैंने तो रियल आप यहाँ पे यही रियल पर्सन आप यहाँ पे यही रियल एग्जाम में मैंने नॉर्मली बोला और मेरे 87 मार्क्स आए। अच्छा अच्छा, आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इसमें बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में बोलें और पास लेके बोले हमें। हाँ, जहाँ पॉजेस हैं, जहाँ पे कॉमा है या फुल स्टॉप है, वहां पे आपको पॉजेस लेने पड़ेंगे, मस्ट है। अगर नहीं लेंगे तो आपकी रीडिंग के मार्क्स गिरेंगे, क्योंकि ठीक हो। ये रीडिंग में काउंट होती है, ये रूल्स रीडिंग के काउंट होते हैं। अच्छा जी, फिर आपकी आ जाती है रिटर्न ऑफ, देखिए तो अभी ना जो है वो ऐप यूनी का थोड़ा इशू है, मेरे साथ भी हुआ है, मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। आपके यहाँ 27 64, लेट्स सी, एक हम 64 ही देख लेते हैं। ये बहुत वीक जा रहा है, मैं इसे जितना भी ट्राई करता हूँ ना, वीक जाता है। नॉट आंसर एनी क्वेश्चन। नहीं, एक सेकंड। He looked me in confusion and did not answer any question. ये आपका ये यही है ना, वो रेड रेड हो रहा है ना, इसका मतलब है वो एआई समझ नहीं पा रही। आप इसको ना सेलफोन पे एक दफा करके देखिएगा, क्योंकि लैपटॉप एको करता है, सेलफोन एको नहीं करता। मैं पहले लैपटॉप पे करती थी, मार्क्स नहीं आते थे, सेलफोन पे क्या मेरे मार्क्स आना शुरू हो गए, क्योंकि सेलफोन का जो स्पीकर है वो अच्छा होता है। तो यही क्वेश्चन आप सेलफोन पे करके देखिएगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा इसका ये है कि आई डोंट नो आप इनिशियल्स लिखते हो कि नहीं लिखते हो, जो जुमला है उसके इनिशियल्स, जैसे द कैंपेन इज इंटेंडेड टू एजुकेट द पब्लिक टू रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट। तो मैम एक मिनट, मेरा रीड अलाउड में एक क्वेश्चन है। पूछे फिर हम रिपीट सेंटेंस पे आते हैं। पूछे। आपने स्ट्रेस को थोड़ा सा डिफाइन किया था, आप उसको दोबारा कर सकते हैं, वो क्लियर नहीं हुआ मैं। जैसे आपने कहा था योर एटीट्यूड, यहाँ पे आपने किया हुआ था, एक सेकंड, लीक कहाँ गया, ये 2 नहीं 1 में था। ये योर एटीट्यूड आपने पढ़ा था, योर एटीट्यूड नहीं योर एटीट्यूड नेचुरल। आपने उस पर थोड़ा जोर दिया है, अब खुद सुने ना, ये देखिए। Roofing your house rarely rates high on the list of a fun and exciting home remodeling projects. But when your home develops a leak, your attitude might देखो take a योर sharp turn. एटीट्यूड, तो आपने Suddenly, the योर एटीट्यूड क्यों बोला, ये योर थोड़ी, योर एटीट्यूड नेचुरल। आपने क्या पढ़ा, योर ओके एटीट्यूड, ठीक सुने है। फिर सुने। but when your home develops a leak, your attitude might योर take a एटीट्यूड, sharp. योर नहीं है, योर एटीट्यूड। योर मतलब खींचना नहीं, Excuse me, आपने इसको खींच दिया ना। मैम कुछ वर्ड्स हैं जिन पे हमें स्ट्रेस देना पड़ता है। नहीं तो जैसे वो आइट्स में बताते हैं कि आपकी बात ठीक है, मगर वो गोरा होता है, गोरे को पता होता है कि पैराग्राफ की नौयत के हिसाब से मुझे कहाँ स्ट्रेस देना चाहिए, कहाँ नहीं स्ट्रेस देना चाहिए। आपको इस पूरे पैराग्राफ में क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन किस नौयत पे बात हो रही है, वो गुस्से में कह रहा है, वो फोर्सफुली कह रहा है, ये किस नौयत की बात हो रही है, तो कहाँ स्ट्रेस देना चाहिए कहाँ नहीं, आप कैसे जज कर रहे हो। ठीक। ठीक है, अब मैं कैसे पढ़ूंगी। Roofing your house really rates high on the list of fun and exciting home remodeling projects. But when your home develop a leak, your attitude might take a sharp turn. Suddenly, the prospect of a dry, tightly sealed house begins to look very attractive. A beautiful new roof can also improve the curb appeal for your house. Normal. अब मुझे नहीं पता कि मैं मुझे अगले बंदे को किस बात पे फोर्स करना है। ठीक है, वो गोरे कर लेते हैं। मैंने एक चीज आप जो बात कह रहे हो ना वो ठीक है, मुझे गोरे को पता है कि मुझे कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, अगले बंदे की उसको पैराग्राफ की नौयत को देखते हुए हमें नहीं पता। मेरा तो ये मैंने ना एपी यूनि पे मैम एक ऐप चीज नोट की है। ऐप एपी यूनि पे हाँ जो ऐप। जो है ना, वो लड़की की वॉइस
उसकी पिच पे और मैन की पिच पे बड़ा डिफरेंस आ रहा है। हो सकता है। बाकी पियर्सन क्या है, पियर्सन शायद ऐसा नहीं करता क्योंकि उनका जो सॉफ्टवेयर है ना बड़ा अच्छा है। उनके जो डिवाइसेस है हेडफोन्स वगैरह ना बहुत अच्छे हैं। सर जी रिपीट। उधर नहीं होगा ये फर्क, इधर आ रहा है ना उधर नहीं होगा, वो न्यूट्रल आ रहा है। वो आप वहाँ एक्सेंट का भी कोई इशू नहीं आता वहां पे। उसका आप मतलब ये इंडिया से हो या, क्योंकि देखिए इंडिया वाले जीरो नहीं बोल पाते, वो जीरो बोलते हैं फिर भी उनके मार्क्स आते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह ट्रेन किया हुआ है कि उनको पता है यहाँ का जो बंदा होगा, जैसे अरब है वो टी नहीं बोल पाता, वो जो है वो दैट नहीं बोलता, वो दैट बोलता है, फिर भी उनके मार्क्स आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह ठीक। एडजस्ट किया है। अच्छा, ये हमारे जो मॉक टेस्ट है ना, ये विदाउट हेडफोन है। ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, चाहे आप हेडफोन यूज करें या ना करें। मैंने खुद हेडफोन भी खरीदे, उस पर अच्छा खासा खर्चा किया, फिर भी वही काम नहीं थी। कितने भी हेडफोन्स खरीद लें, कितने भी डिवाइसेस चेंज कर लें, मार्क्स आपके कम ही होंगे। मतलब सिर्फ ये है कि मेरे 77 कभी ऐप यूनी में ना 80 से अबव कभी गए ही नहीं। मैंने हेडफोन चेंज कर लिया, मैंने सेलफोन चेंज कर लिया, मैंने ईयरफोन्स चेंज किए, इतना खर्चा किया, 80 से अबव कभी मेरे गए ही नहीं, वहां मेरे 87 आए। तो क्यों? क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर ज्यादा अच्छा था, इनका सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं। फिर वहां मैंने अच्छा। नेचुरली बोला था, यहाँ कहता है कि जी भागो, फ्लुएंटली बोलो। आए रिपीट से पे फिर। आ जाए, ठीक है, रिपीट सेंटेंस में आप कोशिश करें कि जी, एक मिनट, तेरह, कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके? 43 वाले नहीं करते, वो देखते हैं जिसमें आपने फिर भी स्कोर किया 64। He looked at me in confusion and did not answer the question. He looked me in confusion and did not answer any question. ठीक है। अब आपने बात वो बोली ही नहीं है, he looked at me in the confusion and did not answer the question। अब ये लाइन पढ़े और अपनी रिकॉर्डिंग सुने। He looked me in confusion and did not answer any question. एनी लफ्ज है ही नहीं यहाँ पे, और एट आपने कहा नहीं अब है। इसमें जो इशू है ना, ये पिक नहीं कर पा रहे। अब इनको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ 2 दिन से, कि पहले अब 4 to 5 वर्ड्स की प्रैक्टिस करो, उनको पिक करो, फिर उसके बाद आगे पूरा सेंटेंस हम पिक करने की कोशिश करेंगे। ये सारा ना इसे भूल जाते हैं। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में भी सेम इशू आ रहा है। हाँ, इसका ये है कि आपको ना वो करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको इनिशियल्स लिख के करना पड़ेगा। जब वो बोल रहा होता है तो आप ही का एच लिखे, लुक का एल लिखे, ए का एट का ए लिखे, मी का एम लिखे। अब जुमला लंबा है तो आधा जुमला आप मेमोराइज कर ले, आधा जुमला आप लिख ले। शुरू का हाफ जो है वो आप उसके इनिशियल्स लिखे, बाकी के जो हाफ है वो मेमोराइज कर ले। जब आप इनिशियल्स लिख रहे हो तो साथ साथ दिमाग में एच एच लिख रहे हो ना, बोले ही लुक। अच्छा, ये करते करते ना ये आपने कर लिया, ठीक है। अब कभी क्या होता है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है और आप अभी रिवाइज ही कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैंने 2-3 सेकंड्स के बाद ही बोलना शुरू किया था। स्टार्ट हो गई थी रिकॉर्डिंग बट मैंने बाद में ही किया था और अच्छी खासी थी। तो आपको इनिशियल्स के साथ साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इनिशियल नहीं लिखोगे तो नंबर वन आपको याद नहीं रहेगा पहले उसने कौन सा लफ्ज बोला, फिर कौन सा कहा, फिर कौन सा कहा। नंबर टू, आपको ये नहीं याद रहेगा कि उसने क्या क्या अल्फाज कहे थे, आपने खुद देखे स्किप किए। तो इनिशियल से प्रैक्टिस करें, शुरू शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है इनिशियल भी लिखना और वो साथ में मेमोराइज भी करना, बट प्रैक्टिस हो जाती है, करना पड़ेगा आपको। बेस्ट है, ठीक है। अगर ऐसे किया जाए मैम कि हम 5 से 7 वर्ड बोलने। ठीक है, बट पता नहीं, मैं क्योंकि मैं 90 के लिए करी थी, मेरी जो गोल था, तो मुझे था कि अगर मैं 7 बोलती हूँ, ठीक है, उसमें से अगर 2 गलत होते तो मुझे तो 50 मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि आप एक्चुअली अगर इसमें ये है आप ना, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के तो पूरे मिल सकते हैं, कंटेंट से हमारे मार्क्स जाएंगे, ऐसे ही है ना। एग्जैक्टली देखिए ना, अगर आप पूरा पेपर करके आओगे 100 मार्क्स का, तो कुछ गलतियां आप करोगे, कुछ पियर्सन को समझ नहीं आएगी तो आपको 90 देगा। अब 90 पेपर करके आओगे आपको 80 देगा, आप 80 पेपर करके आओगे वो आपको 70 देगा, आप 70 पेपर करके आओगे वो 60 देगा। जी ठीक जी। है? तो कोशिश करें, पूरा पूरा कोशिश करें कि एटलीस्ट 80% तो वो नहीं, जी जी, एटलीस्ट ठीक है। एटलीस्ट। अच्छा मैम ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप पहले लिख लें फिर बोले फौरन वर्ड्स को बना के। हाँ, ये हो जाता है पॉसिबल? आप दो एक साथ बोल रहे हैं ना, समझ नहीं आ रही क्या? मैं कह रहा हूँ ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना कि पहले बंदा उसे शॉर्ट वर्ड्स में लिखे फिर वो एक सेंटेंस बनाए और फिर उसे बोले।
इतना टाइम नहीं होगा, शॉर्ट हैंड नहीं लिखना, इनिशियल्स लिखना, पहला लेटर। अगर मैं 3 या 4 सेकंड्स के बाद बोलना शुरू करता हूँ हाँ तो ठीक है, कोई मसला नहीं। प्रॉब्लम होगा? नहीं, मैंने भी 3-4 सेकंड्स के बाद बोलना शुरू किया था। लेकिन वो मैंने इस पे ऐप पे किया है, तो लेकिन वो यही मसला आता है कि मेरे 10 10 10 मार्क्स आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लैंग्वेज एकेडमी में वो बता रहे थे कि 3 सेकंड्स के बाद ये जीरो कर देते हैं अगर 3 सेकंड आप नहीं बोलते। तो आवाज एको हुई क्या? अ, आवाज एको हो गई थी, क्या कह रहे हैं? Information of the number of the environmental disasters. क्या कहा था आपने? एको हो गया था आपकी वॉइस। लैंग्वेज एकेडमी की मैं वीडियो देख रहा था, वो इंडियन है जो वरुण धवन हाँ पता है। हाँ। कह रहे थे कि 3 सेकंड रिपीट सेंटेंस में 3 सेकंड आप खामोश रहे ना तो वो फिर आपको पिक नहीं करता, वो बंद कर देता ऑटोमेटिकली इसको। अच्छा नहीं, मेरे तो 87 आए। अगर ऐसा होता है, क्योंकि रिपीट सेंटेंस तो 12 होते हैं, और अगर मेरे 12 के 12 उसने पिक नहीं किए तो मेरे 87 कैसे आ गए? खैर, अगर आपको बिल्कुल। डाउट है तो ये फिर बेहतर है बेस्ट है, कि हम कोशिश करते हैं 4 5 सेकंड में बोलते हैं। 4-5 सेकंड्स के बाद। जी 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 जी। 1-2 सेकंड्स के बाद तो बोल सकते हो, 1 सेकंड 1-2 सेकंड्स। क्योंकि वो तो पूरी वो चल रही होती है ना, तो उस चलने में जो जो बोला जा रहा होता है वो रिकॉर्ड कर रहा होता है, चाहे पीछे वाला बंदा भी क्यों ना बोल रहा हो। जी। जितनी देर वो टाइमर चलता रहेगा, वो तो आपकी रिकॉर्ड करता रहेगा, वो जो बात चल रही होती है। ठीक है। अच्छा एक्सक्यूज फिर। मी मैम, एक प्रॉब्लम, एक एक बात बताएं। जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं, कहा जाता है कि वहां पे लोग ज्यादा होते हैं, बच्चे ज्यादा होते हैं, तो उनकी वॉइस भी अंदर इंटरप्ट करेगी हमें कि नहीं? आपको कॉन्फिडेंस आपको खुद रखना पड़ेगा, वो पीछे होता है बट आपको अपना पकड़ के रखना पड़ेगा कॉन्फिडेंस, आप कुछ नहीं कर सकते। आप खुद में। नहीं, वो अंदर वो आपके जाएगी तो सही जाएगा, ना माइक में? माइक में नहीं जाएगा। उनका वो सॉफ्टवेयर अच्छा है। हाँ, आप खुद डिस्टर्ब होते हो, तंग होते हो, आपका दिल कर रहा होता है कि आप उसको चुप कराओ। अगर आप ऐसे करोगे, आपको कॉन्फिडेंस लूज होगा और आपके हाथ से वो पेपर निकल जाएगा, वो आगे निकल चुका होगा, आपका स्पीकर और रिकॉर्डिंग और सारी कुछ। तो आप कुछ नहीं कर सकते। बस सिर्फ 100% कॉन्सेंट्रेशन अपने काम पे होनी चाहिए। अच्छा जी, इसका देखते हैं आपका 69 एक है। एक और क्वेश्चन है। आपने ये जो 87 लिए हैं, कितनी देर में प्रैक्टिस करके लिए हैं? मैंने मैंने जो है, आप इन कह सकते हो कि इन टोटल 3 महीने की थी, बट मैं पढ़ाती भी हूँ यूनिवर्सिटी में, तो आप इमेजिन करें 8:30 to 5:30 मेरी यूनिवर्सिटी टाइमिंग होती थी, और मैं 4 कोर्सेज पढ़ाती थी और थीसिस के स्टूडेंट्स वगैरह। तो शुरू के 1-1.5 महीना मैंने प्रैक्टिस की, और बाकी का 1 महीना मैंने लग के मॉक किए। मॉक पे मेरी कंसंट्रेशन ज्यादा थी। तो ये भी नहीं है कि दिन में मैं 10-10 मॉक कर रही होती थी, आधा मॉक करती थी, फिर मैं क्लास लेने चली जाती थी, फिर थोड़े मॉक के क्वेश्चंस किए, फिर एक मीटिंग पे चले गए, तो काम के साथ साथ के इसलिए मुझे 3 महीने लगे। ठीक है, 3 महीने लग आगे गए। चलते हैं। जो जो बात है वो मैंने आपको बताई कि आई टुक अराउंड 3 मंथ्स। हमारा टेस्ट है 22 को, इसी मंथ की। एक तो मुझे ये और नहीं अभी समझ सिक्स आती ना कि लोग इतना एडवांस में बुक क्यों करते हैं, जब तक आप कॉन्फिडेंट हो बुक ना करनी चाहिए टेस्ट। इतना एक्चुअली महंगा आदत है। महंगा मैं टेस्ट आपको है। टेस्ट बुक ना करे ना, ये तैयारी नहीं की जाती। ये ऐसा नहीं है। 3 मंथ पहले की बुक ऐसा की नहीं हुई है, है। ऐसा अब नहीं। आके इन्होंने तैयारी ऐसा कुछ स्टार्ट भी नहीं की है। होता, हर चीज डेडिकेशन से होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चले इसको देखते हैं। मैम, इसमें यही है ना कि कुछ दोस्त होते हैं वो जो मारने पे तुले होते हैं। जी जी, क्या कह रहे हैं? तैयारी अभी शुरू भी नहीं की तो कुछ दोस्त होते हैं जो मारने पे तुले होते हैं, जिन्होंने अभी तैयारी भी नहीं शुरू करवाई होती है, और टेस्ट बुक करवा लेते हैं कि इस बहाने से तैयारी होगी। ये रीस्केजुअल हो सकता है, आगे हो सकता है। हो जाएगा, हो जाएगा। आप अगर आप 24 डेज पहले, आई थिंक 14 डेज पहले बताओ तो कर देते हैं। मैंने सिर्फ 24 आवर्स पहले की थी, जब तक मेरे दिल से आवाज नहीं आई कि जी अब आप रेडी हो, मैंने टेक्स्ट बुक नहीं कराया था भाई। 70,000 बहुत बड़ी रकम है। ये कल तो शेड्यूल करवाने का प्रोसीजर क्या है? तो ये उनकी वेबसाइट पे देख लें।
मेरे फ्रेंड्स तो बल्कि मुझे ये कहते थे कि जब तक आप रेडी नहीं है आप बुक नहीं करना। अच्छी चीज है, लेकिन इस केस में ना ये जरा स्पेशल केस था। जब तक हमने इनका खर्चा नहीं था करवाना, इन्होंने। खैर अब वो आप आपस में लड़ते रहिएगा ऑफ द ऑफ द रिकॉर्ड। ओके लेट्स लुक एट दिस डिस्क्राइब इमेज में भी आपके जो प्रॉब्लम्स हैं। The picture provides the information of the number of. एक ही आपके रेड वर्ड्स हैं, वो वही वाले एको वाला मसला है। दूसरा द पिक्चर प्रोवाइड नंबर ऑफ एनवायरमेंटल डिजास्टर्स इन देयर इज अ डिफरेंट एलिमेंट combination of the different elements. दोबारा दोबारा words. There is a different element. There is a different element. Picture. One of the limit is the maximum. The other limit is minimum. On the picture, I can see the number of ages 20 plus 16, 20, 15, 11, 20 इस तरह नहीं पढ़ा जाता इसको जैसे आपने पढ़ा हुआ है। I can see the number of the ages 15, 20 इस तरह नहीं पढ़ा जाता। इसको इस तरह पढ़ा जाता है। आप मुझे सुनिए। Here is an informative picture in front of me. It is about number of environmental disasters. I can see that on the western side of America, there are 20%, more than 20 disasters. I can see in the mid of the state, there are around 11 to 15 disasters. Coming to the west side of the country, there are less than 5 disasters. In conclusion, it is a very important picture. कि आपने जो है वो ब्लू वो इस तरह बता रहा है कि जी डार्क ब्लू में 20 प्लस है 15 टू और थोड़ा हल्का जो है वो 11 to 15 है। थोड़ा और हल्का तो जैसे जैसे वो मूव होता जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे हमें ये नजर आ रहा है कि कहाँ पे ज्यादा डिजास्टर्स है। जो बीच है कंट्री का वहां पे थोड़े कम डिजास्टर्स है। तो जब वो ईस्टर्न साइड पे चला जाता है तो वो डिजास्टर्स कम होना शुरू हो जाते हैं। उनको इस तरह पढ़ा जाता है। आपने क्योंकि आपने कहानी नहीं बनाई है और अगर सीखना चाह रहे हैं ना कि कैसे पढ़ते तो इन्हीं के जो आंसर्स दिए हुए हैं ना इन्हीं को पढ़ लिया करें। वहां से बहुत ज्यादा सीख मिलती है कि इन ग्राफ को पढ़ा कैसे जाता है। जैसे उन्होंने कहा फॉलोइंग ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट यूएस मैप ऑफ एनवायरमेंटल डिजास्टर डेटा ऑफ डिफरेंट एरियाज आर डिस्प्लेड ऑन द मैप। यही देखे ना डिफरेंट एरियाज दिए हुए हैं उन्होंने सारा जो भी 50 स्टेट्स हैं। द आइटम इंक्लूड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द यूएस एंड द नंबर ऑफ डिजास्टर्स। तो ये सारे नंबर ऑफ डिजास्टर्स दिए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ द मोस्ट हेविली स्ट्रक एरिया आर इन कैलिफोर्निया। चलो ये तो हमें नहीं नजर आ रहा ठीक है मगर एटलीस्ट ये तो हम कलर देख के देख सकते हैं ना कि यहाँ पे डार्क ब्लू लेफ्ट वेस्ट की तरफ ज्यादा था। फिर मिडल में थोड़ा हल्के हल्के ब्लू है। फिर जब आप ईस्टर्न साइड पे जाते हो तो और लाइटर ब्लू हो जाता है। तो ये तो आप एटलीस्ट देख के बता सकते हो इसको इस तरह पढ़ा जाता है। इसमें भी आपका आपने वो चीज दी नहीं होगी जो उनको चाहिए होगा। Section in front में भी provides the information of the miles sales in the. आपके कंटेंट में तो मार्क्स आ गए प्रोनाउंसिएशन ये रेड की वजह से मार्क्स गिरे हैं आपके जो रेड लेटर्स आपके बने हुए हैं ना। तो इसको कोई ऐसी डिवाइस से करें मोबाइल से करके देखिएगा आपका स्कोर अच्छा आएगा। सिर्फ स्पीकिंग स्केड्यूल ना मोबाइल से कीजिएगा आपका। आई कैन सी इसमें आ रहा है आंसर में, आप देखें। लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा मसला आ रहा है फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन में। हाँ ये रेड रेड की वजह से आ रहा है ना रेड रेड जो आ रहा है। अच्छा रिटेल लेक्चर में कितने हैं यही रिटेल में कंटेंट तो है मगर ये सारा ये रेड आपका हुआ है ना ये देखिए। तो आप ना सेल फोन पे सिर्फ स्पीकिंग मॉड्यूल को पकड़ के सेक्शनल आप कर सकते हो। सेल फोन उठाएं इस पे करें आपका स्कोर कंपैरेटिवली बेटर होगा क्योंकि आपका स्पीकर उसमें अच्छा होगा। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन ठीक है ये आपको। मैम एक बात बता दें, रिपीट सेंटेंस में कोई एक जो है ना टिप एंड ट्रिक वो मैंने वही बताई है ना इनिशियल्स जो आपने यूट्यूब। इनिशियल्स। आप रिटेल लेक्चर कहना चाह रहे नहीं, हो हाँ। रिटेल लेक्चर में फ्रेजेस लिखें कीवर्ड्स ना लिखें फ्रेजेस लिखें 4 एटलीस्ट फ्रेजेस लिखें। अब बोले सॉरी। फॉर एग्जाम्पल आप एक बताएं, जरा बोल के बताएं एक वाला मैं रिटेल में। इतना बड़ा बैठ के बोलूं। नहीं नहीं, वैसे अगर आप बोले तो कैसे बोलेंगे सिंपल वर्ड्स में? The lecture delineates a detailed picture regarding environmental sciences. The speaker told that people are working hard on situation to improve the environment. He also said that scientists are working on different experiments to curb the pollution in the country. अब मैं फंबल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं कहानी बना रही हूँ दिमाग में। She also said that
money is a lot of money is needed to uh, buy natural resources or resources to carry on the situations needed according to the environment. Um, uh, the clean wind, pure water, and healthy food was also mentioned in detail. In conclusion, it is a very important lecture. नहीं मैम, जितना आपने पाजीज लिए हैं और तो वो मैं कहानी दिमाग में किया बना है। रही हूँ ना, मेरे पास मैंने लेक्चर थोड़ी सुना है, मैं तो कहानी बना खुद बैठ के बनाई ना। अच्छा समझ रहे हैं मेरी अच्छा, बात को, क्योंकि मैंने ठीक लेक्चर हो थोड़ी गया, सुना था, ठीक मैं हो कहानी बैठ के बना रही थी, तो इसलिए मुझे सोचना पड़ा। हाँ, तो मैम आप इस बात में, आप इसमें जो है हम टेम्पलेट्स को क्या रेट करते हैं, हमें टेम्पलेट्स यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? टेम्पलेट अब मैं सजेस्ट नहीं करती टेम्पलेट, मैं टेम्पलेट की सिर्फ पहली लाइन और आखिरी लाइन सजेस्ट करती हूँ। टेम्पलेट में आपकी ज्यादा जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो कंटेंट की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि लोग टेम्पलेट बोलने के चक्कर में इतने रह जाते हैं कि असल कंटेंट नहीं प्रोवाइड करते। टेम्पलेट जो है ना वो पियर्सन के आंसर की नहीं होती। पियर्सन ने अगर कोई सवाल दिया हुआ है तो उसके आंसर की भी दी हुई है, उसमें उन्होंने आपको टेम्पलेट नहीं लिखा हुआ, उसने सिर्फ वो लिखा हुआ है जो उसका कंटेंट है। अब जिस तस्वीर में जो शो हो रहा है, अगर ये है तो इस तस्वीर में जो जो नजर आ रहा है वो आंसर है। तो अगर आपने नहीं बताया कि जी देर आर 4 people who are playing in the snow, there the whole area is covered with white snow, there is a woman who is shoveling with a yellow spade, there is another woman who is wearing red jacket and red cap। अब तस्वीर में ये चीजें हैं, अगर वो चीज आप नहीं बोल रहे हो और आप सिर्फ अपने इस चक्कर में हो कि किसी तरह मैं अपना टेम्पलेट पूरा पढ़ लूं, तो फिर वो मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि इस तस्वीर में जो दिख रहा है वो आंसर है। आपका टेम्पलेट के क्या वर्ड्स यूज हुए हुए हैं, वो आंसर नहीं है। हाँ, टेम्पलेट इसलिए जरूरी है कि ये नहीं है कि आप वो जो मोइन अख्तर कहता है ना, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ गुस्से में, तो आप इधर से जुमला पकड़ रहे हैं, किधर से पकड़ रहे हैं, पता नहीं किस डायरेक्शन में आपके जुमले जा रहे हैं, इसलिए टेम्पलेट इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करें उसमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट वो रखें जो तस्वीर में दिया हुआ है, ये लेक्चर में बोला गया। ठीक। एक्चुअली ये ऐसे ही आता है ना टेम्पलेट में। द पिक्चर इज वेरी, देर इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी पर्पल कैप एंड ऑरेंज कैप, फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी वायर एंड आर्मी मैन, फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी 3 person, ये फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी स्नो, ओवरऑल द पिक्चर इज वेरी वो इंफॉर्मेटिव, वो फ्लुएंसी तो भी है, बन मगर जाती है, कॉन्टेक्स्ट वो भी तो हो। है, मगर आपने आई कैन सी रेड तो ये कीवर्ड हो गया, आपने फ्रेज नहीं बनाया। अब इस तरह बना रहे, जी आई जी कैन सी दैट अ लेडी इज वेयरिंग रेड जैकेट एंड रेड कैप, आई कैन ऑल्सो सी देयर जी। इज अनदर लेडी हु इज वेयरिंग ब्लैक जैकेट एंड अ ब्लैक कैप, शी इज होल्डिंग अ येलो स्पेड इन हर हैंड। I can also यस see that in the background there is a person who is wearing a camouflage dress, तो यूनिफॉर्म। जुमला हो गया। अब रेड जी जी ड्रेस रेड कैप, तो ये तो कीवर्ड्स हो गए। जी 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 जी। देर इनके हमने कीवर्ड्स नहीं देने, हमने प्रॉपर पेयर्स बना के उसके हाँ, देने हैं। पूरा पूरा जुमला बनाए, लाइक आई कैन सी देर इज वाइट स्नोफॉल ऑल अराउंड एवरीवेयर, जी। इस तरह। ओके। इसीलिए इस टेम्पलेट की वजह से एक्सटेंडेड राइटिंग और स्पीकिंग के आ रहे हैं ना प्रॉब्लम्स। हाँ, वही तो हमें वो इतना लोगों को कहते हो प्लीज टेम्पलेट की जान छोड़े, तो ये देखिए लोगों का ये होता है किसी तरह मैं टेम्पलेट पूरा पढ़ लूँ, तो टेम्पलेट के जो अल्फाज है ना वो आंसर्स नहीं है। आंसर्स जी वो है, सवाल में ही जवाब है। जो रिटेल लेक्चर में बात कह रहा है वही बात उसको दोबारा बता दो, आपका जवाब हो गया। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह राइट ऐसे में जो उसने आपसे पूछा है, आप ऐसे के जो टेम्पलेट से फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछ रहा है कार्स के बारे में, और आपने पूरा ऐसे लिख दिया, और कहीं पे एक लफ्ज आपने गाड़ी के बारे में नहीं लिखा, वो आपको मार्क्स क्यों देगा? टेम्पलेट का मतलब ही टेम्पलेट है, टेम्पलेट का मतलब ही सिंपल है। ठीक है, ये आपका हो गया। रीडिंग की तरफ चलते हैं, देखते हैं आपके क्या मसले मसाइल हैं। रीडिंग आपको पता है वहां से भी आती है, क्योंकि आपके रीड अलाउड में मार्क्स कम हो रहे हैं, तो डेफिनेटली रीडिंग में भी मार्क्स गिरेंगे। समराइज रिटन टेक्स्ट, ये ठीक है आपका, ऐसे भी ठीक है, इसमें ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। रीडिंग में आपके रीड अलाउड क्योंकि खराब है तो इसलिए मार्क्स गिराएगा।
ये आपका मसला है, आपको शायद वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं आती। ये इतना भी बड़ा मसला नहीं है, सही है, सिर्फ और थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। Reading में ना अच्छा, हमें ये जो री मल्टीपल, और री और फिलिंग द ब्लैंक इनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसका हमें कोई समझ नहीं आ रही कैसे इनको रिजॉल्व करें इस प्रॉब्लम को। इसका यही है कि फिलिंग या उसको ग्रामर आनी चाहिए, या उसको वोकैबुलरी का पता होना चाहिए, या क्या वो जो लाइन पढ़ रहा है क्या उसको उसकी वो समझ आ रही है, वही बात को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा। अगर वो बात को समझेगा तो ये आंसर चूज कर सकेगा, वरना नहीं। इतने प्रेशर में होता है बंदा मैम, तो फिर बंदा कैसे कर सकता है कि बात को सारी को समझे, वर्ड्स के साथ वर्ड्स मिलाए, लाइन के साथ लाइन, वर्ड सूट करता है कि नहीं करता। देखिए, आप सिर्फ वो वाली लाइन देखिए जिसमें ब्लैंक है, पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद नहीं पढ़ती। दूसरी बात, जब दूसरे कर सकते हैं तो आपको भी करना पड़ेगा, यही तो असल चीज है। हम्म। इसके लिए क्या टिप हो सकता है या ट्रिक हो सकता है वो कैप के और ग्रामर के अलावा? ग्रामर के अलावा कि अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो वो लफ्ज सेंटेंस में लगा है जो एटलीस्ट सुनने को तो ठीक लग रहा है कि हाँ, सुनने में ये फिर भी इसे थोड़ा इसे सेंस कर रहा है। मैम अगर इसे ऊपर करें ना, इसे ऊपर करें तो, या इसे ऊपर करें या नीचे करें, माइट भी ऊपर करें, अब इधर या नहीं। अब टेम नहीं पता इसका वर्ड का मीनिंग, एक्सिलरेट का तो चले पता है। इसी तरह ऊपर और कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनका पता ही नहीं है। अब ये जो फर्स्ट इसकी, इसी के मैम नीचे वाले की जो फर्स्ट है, अबव वाटर, यहाँ पे सेंस नहीं थी बन रही मैंने दोनों अब। में अबव वाटर बन रही है सर। बन रही है ना, मतलब आप उसको आपने, अबव वाटर का मतलब ये है कि उसको डिबोना नहीं है, इकोनॉमी को डिबोना नहीं है। एक ये ना मुहावरतन उसने कहा है कि हाँ, आपको इकोनॉमी को पानी के ऊपर रखना पड़ेगा, अगर वो पानी के नीचे जाएगी तो इकोनॉमी आपकी डूब जाएगी, ये मुहावरतन कहा है इसने। जो फ्रेजल वर्ब है ना। ठीक। तो यही बात है कि आप जुमले को एक दफा उर्दू में भी थोड़ा करके देख लें, आप प्रैक्टिस करें, हो जाएगा। अभी जब प्रैक्टिस करें तो ये ना देखें कि 2 मिनट के अंदर अंदर करना है। मैं जब करती थी तो मैं 15-15 मिनट भी लगा लेती थी एक पैराग्राफ पे, पर समझना चाहती थी ना कि ये सब है क्या, नो किस नौयत का है। जब मुझे इसकी समझ आ गई कि ये किस तरह के सवाल है, फिर मेरे तो 1.5 मिनट में हो जाते थे, एक, बल्कि फिर ये टाइम आ गया कि मेरे 1 मिनट में हो जाते थे। तो आप एटलीस्ट उस आपकी लाइन को समझने की कोशिश करें कि वो लाइन किस नौयत की बात है। आप उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट करेंगे ना तो भी समझ आ जाएगी आपको। आपकी कैब अच्छी थी। हाँ, मैं पीएचडी की हुई है तो वोकैबुलरी तो अच्छी है, पीएचडी सॉरी किसमें की है आपने? मैनेजमेंट। मगर ये है कि मेरे सबसे कम आए ही रीडिंग में आए थे, और रीडिंग सबसे मुश्किल मॉड्यूल है। और वहां पे इस सॉरी किसमें की है आपने पीएचडी? मैनेजमेंट मैनेजमेंट। अच्छा। अच्छा, उसमें मेरे मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, ऐसा नहीं है कि थाली में सजा दी, क्योंकि रीडिंग सबसे मुश्किल पार्ट है। और वहां पे जो वोकैबुलरी आई थी वो इससे भी मुश्किल आई थी, ऐप यूनी से भी मुश्किल आई थी, मुझे भी काफी वहां पे स्ट्रगल करनी पड़ी थी वोकैबुलरी को समझने के लिए। हम्म। क्योंकि कुछ चीजें जो आप बस में नहीं होती तो आपको उस हिसाब से लेके चलनी पड़ती है। चलिए, अच्छा, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल में प्लीज आप, हालांकि उसका नाम मल्टीपल है पर प्लीज मल्टीपल चॉइस ने चूज ना करें, कोई एक करके छोड़ दें, दैट्स इट। जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे करें। देखिए, आंसर बी डी था आपका, आप एक बी भी लिख देते ना आपको एक नंबर ही मिलना था, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ना ही करे तो बेहतर है। ठीक है, अगर आप कोई एक भी डन। करते ना, अगर सिर्फ डी कोई एक भी करते तो आपका आंसर ठीक था, अब वो नेगेटिव मार्किंग में चला गया, फायदा क्या हुआ। रीऑर्डर में क्या हो सकता है? रीऑर्डर में आप सिर्फ एक क्या कहते हैं,